Hello students, today we will discuss important symbols in the play Hairy Ape. Students, you already know that this is written by Eugene O'Neill. First of all, we discuss what is a symbol. A symbol is a literary device that uses words, people, marks, location or abstract ideas to represent something beyond the literal meaning. मीन्स ये एक ऐसे जो हैं वर्ड्स हैं जिसमें हम किसी चीज़ को हम लिटरली हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम उसको अपने सिंबल के थ्रू किसी डीप मीनिंग को हम शो कर सकते हैं. द प्रेजेंट प्ले हेयरी एप इज़ फुल ऑफ सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म हैज़ बीन यूज्ड विद great effect and mastery. Symbolism runs throughout the play from beginning to the end. शुरू से लेकर के एंड तक whole play is full of symbols. So let's discuss. First discuss is symbol is Rodin's the thinker. Students, इस प्ले में हम देखते हैं कि जब भी यंग है वो डिस्टर्ब होता है तो वो रोडिन्स द थिंकर की पोजीशन में बैठता है और कुछ थिंक ओवर करता है. इट सिम्बोलाइजेज यंग्स डायर नीड टू थिंक ओवर हिज सिचुएशन. हियर रैंक यंग सिम्बोलाइजेज एवरी मैन, his attitude, his impulses, his feelings, and what happens to him is happening to man everywhere in the modern machine age. हर एक पर्सन के साथ ऐसा ही घटित हो रहा है, तो एवरी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और उस टाइम की नीड को रिप्रेजेंट करता है कि एवरी पर्सन के साथ है क्या घटित हो रहा है. Next symbol is Yank. Yank is the central character in the play and he is a complex symbol as he symbolizes not one but a number of ideas. First, he is a stalker and he symbolizes their most perfect individuality. He is superior to all stalkers in muscles and strength, and he is more adjusted with his work than other workers. Secondly, he symbolizes the working class people and working in the most difficult and oppressive condition, and he produces wealth for rich people. Thirdly, he symbolizes the animal nature of man, his feelings, his impulses, which man has इनहेरिटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल एंसेस्टर द हेयरी एप. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है वो एक मंकी से ही हुई है, तो यहाँ यही कहा गया है कि वो रिप्रेजेंट करता है अपने एंसेस्ट्रल बायोलॉजिकल फादर से, जो कि एक एप है और उसी से उसका नेचर है वो रिजेंबल करता है. एंड ही ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द प्रीमेटिव इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर, विद हिज वर्क एंड विद हिज एनवायरनमेंट. वो इन सब चीज़ों में अपने वर्क्स के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपरली बैलेंस, या उसने अपने उस एनवायरनमेंट को टोटली अडोप्ट किया हुआ है. नेक्स्ट, टाइटल द हेयरी एप आल्सो सिम्बोलाइजेज येंग्स डीजनरेशन इनटू एन एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग, या एनिमल लाइक बीइंग उसको वो रिप्रेजेंट करता है टाइटल ऑल्सो. Next symbol is Mildred's white dress. It symbolizes extreme privilege of upper class society. Second, Mildred Douglas. She is also the representative of capitalist class people who lives a life of comfort and luxury. Third, confrontation between Yank and Mildred. It also symbolizes modern class conflict between rich and capitalist people, as Mildred Douglas symbolizes the rich capitalist class living an artificial life of comfort and luxury, and her confrontation of Yank generally shows class consciousness and their claiming for rights.
This confrontation results in Yank's loss of belongingness. It is symbolic of modern workers' loss of harmony and creative joy in his mechanical work. So, Mildred and her confrontation with Yank also symbolizes the class consciousness. The steel. स्टूडेंट्स, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है स्टील कंपनी का, इट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज या इट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज पावर एंड ऑपरेशन, बिकॉज जब भी ये स्टील की कोई भी थिंग उसके सामने आती है या स्टील वर्ड जब भी यंग के सामने आता है तो उसको एट वंस उसका जो ह्यूमिलिएशन मिल्ड्रेड के हाथों हुआ है उसकी याद आती है, और वो एकदम से हम कहें कि वर्कर्स क्लास और जो रिच क्लास है उन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एकदम से यंग के माइंड में आता है, और वो एकदम से आप कहें कि बहुत ज़्यादा फुली डिस्टर्ब्ड फील करता है. नेक्स्ट, द स्काई स्क्रैपर्स इन द 5th एवेन्यू. स्टूडेंट, 5th एवेन्यू वे प्लेस है जहाँ पे रिच सोसाइटी के पीपल रहते हैं, ये उनकी सराउंडिंग है, और यहाँ पे जब यंग आता है तो वो देखता है कि वो प्लेस बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, वहाँ पे एवरीथिंग है चीज़ है वो प्रॉपर वे में सजी हुई होती है, हर एक वो वहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स देखता है तो वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है. इट सिम्बोलाइजेज हाई एम्बिशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट. ये उनके मटेरियल डेवलपमेंट को बताता है, या हम कह सकते हैं कि जो रिच क्लास सोसाइटी है उनकी जो लग्जरियस को शो करता है 5th एवेन्यू. स्टॉकहोल, द सीन ऑफ स्टॉकहोल वेयर ऑल द वर्कर्स वर्क्स एंड आफ्टर देयर लेजरली हार, जब वो इकट्ठे होते हैं या जो एंजॉय करते हैं, इट कन्वेज एन इम्प्रेशन ऑफ क्रैम्प्ड स्पेस. Cramped space means overcrowded space. It stands for the overpopulated and uncomfortable life of working class people in this civilized world. Next, ringing a whistle. स्टोकर्स रूम में हम देखते हैं कि ऑल वर्कर्स हैं वो उस भट्टी में कोयला झोंकने के काम में लगे हुए हैं, एंड दे स्टार्ट एंड देयर ब्लोज अ विसल, एक विसल की साउंड होती है, एंड ऑल वर्कर्स started their work of throw coal in the furnace, and when the whistle blow again then they stop their works. It shows the mechanical, yeah, you can say human beings has been degenerated into a machine. You can say human being को जो डिह्यूमनाइज कर दिया गया है कि उसको एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है. Next, the ship and its engine. The description of ship and its engine symbolizes the advancement of world in respect of science and technology. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को भी शो किया गया है शिप और उसके इंजन के थ्रू, जो कि आज की प्रेजेंट सोसाइटी में जो एडवांसमेंट हुई है. द आयरन बार्स ऑफ प्रिजन एंड केज. जब यंक को जेल में डाला जाता है तो वो जब वो उसकी अपने जो जेल की जो सेल होती है उसके जब आयरन बार्स को देखता है तो एकदम से उसको स्टील उसके माइंड में आ जाता है और वो एकदम से हाइपर हो जाता है और उसको जो स्टील फर्म की कॉन्शियसनेस उसके माइंड में आती है, उसका मिल्ड्रेड डगल्स के हाथों जो उसका जो ह्यूमिलिएशन होता है वो याद आता है. तो यहाँ वो पावर को, ऑपरेशन को सिम्बोलाइज करता है. एंड इट आल्सो सिम्बोलाइजेज द डीजनरेटेड स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन ब्रॉट अबाउट थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हुई है उसके साथ साथ क्या है, ह्यूमन बीइंग जो कि एक वर्किंग क्लास है उसको क्या कर दिया गया है, डीजनरेट कर दिया गया है. नेक्स्ट, लैंग्वेज. लैंग्वेज इज इन दिस प्ले इज ऑल्सो यूज्ड एज ए सिंबल. सिम्बॉलिक यूज ऑफ लैंग्वेज थ्रू like Mildred called Yank a filthy beast, and she looked towards him as if she regarded him as an hairy ape.
Yank feel insulted in the very heart of his pride. So the feeling that he doesn't belong, कि जो जब उसने उसको फिल्दी बीस्ट कहा तो येंक ने खुद को हेयरी एप लाइक फील किया, तो उसकी जो ये फीलिंग थी जिससे वो बिलोंग नहीं करता था, जो एप लाइक फीलिंग उसने महसूस की, बिकम्स एन ऑब्सेशन विद हिम, उसके साथ कंटिन्यू एक ऑब्सेशन बन जाती है। एंड दिस ऑब्सेशन रिजल्ट्स इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और इसी जो डी जनरेशन की जो फीलिंग है, डिसइंटीग्रेशन की फीलिंग है, इसी फीलिंग के कारण है वो कंटिन्यूसली खुद को डीह्यूमनाइज फील करता है, और पूर्ण रूप से आप ये कह सकते हैं कि मेंटली जो यंग है वो डिस्टर्ब रहता है। नेक्स्ट, setting has also the symbolic value. The setting of the play in the very first scene, the description of the stoke hole is deliberately shown by dramatist. He is intended to convey the impression of a cramped, means overcrowded space. Yang and other stokers are not quite human, they are something ape like about them. क्योंकि जिस तरीके की ओवर क्राउडेड सिम्बोलिक सीन दिखाया गया, वो यही दिखाया गया कि वो ह्यूमन बीइंग ना होकर के कोई एप लाइक फिगर है, जो उस हम कह सकते कि फिल्दी एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट सीन, in 8th scene, when we see that Yank has been represented as ape, when he is found himself locked in the cage of an ape, it also shows the dehumanization of human being. So in short, we can say that Hairy Ape is a symbolic play in which characters, setting, dialogue all combine to interpret man's fate in the contemporary world. By the use of symbolism, Eugene O'Neill has universalized the theme of the play. It is a play which always gives thrill to the theatre audience. So we can say the whole play is full of symbolism, and the writer has fully successful to convey his meaning. Thank you.